स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करवाएंगे जिनमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके हम इक्वेशन बनवाते हैं, देखते हैं लीनियर इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है वर्ड प्रॉब्लम से। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Then find the numbers. Let the numbers be x and y. According to first condition, their difference is 26, means x minus y equal to 26. This is equation first. And according to second condition, one is 3 times the other, that is x equal to 3y, or you may write it x minus 3y equal to 0. This is equation 2. अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड से निकालेंगे x की वैल्यू, x इक्वल टू 3y आएगा। इजियर वैल्यू आप इसमें पुट करें और सॉल्व करें। इसके सेकंड में आते हैं। सेकंड में दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिनमें से जो स्मॉलर वाला है वो लार्जर से 18 लेस है, और लार्जर एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. Let the angles be x degree and y degree. They are supplementary angles, so x plus y equal to 180 degree, equation 1. And larger angle exceed the smaller y 18 degree, that is x equal to y plus 18, or you may write it x minus y equal to 18, equation 2. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन बना दिया है। चलिए क्वेश्चन 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में 7 बेड्स एंड 6 walls together cost rupees 3,800, and 3 beds and 5 walls cost rupees 1,750. You have to find out cost of a bed and a wall. Let cost of a bed be rupees x and that of a ball be rupees y. So according to first condition, total cost of the 7 beds and the 6 walls is rupees 3,800, means 7x plus 6y equal to 3,800. This is equation 1. And the total cost of 7 beds and 3 beds and 5 walls is 1,750, which gives 3x plus 5y equal to 1,750. ये दो इक्वेशन बने। आप इनको सॉल्व करें और x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकालें। चलिए मैं क्वेश्चन 5 में आ जाता हूं। थर्ड का फिफ्थ, कोई फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। और सेकंड कंडीशन में दिया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। लेट द फ्रैक्शन बी x upon y, or you can let the numerator be x and denominator be y and fraction equal to x upon y.
According to first condition, if we add 2 in both of the numerator and denominator, the fraction becomes 9 upon 11. That is x plus 2 upon y plus 2 equal to 9 upon 11. अब इसे linear equation बनाना. Now cross y multiplication. 11x plus 2 equal to 9y plus 2. 11x plus 22. 9y plus 18. 11x minus 9y. 18 minus 22. 11x minus 9y equal to minus 4. This is equation first. Second equation, according to second condition, x plus 3 upon y plus 3 equal to 5 upon 6. Again y cross y multiplication. 6x plus 3 equal to 5y plus 3. 6x plus 18, 5y plus 15. 6x minus 5y, 15 minus 18 और 6x minus 5y equal to minus 3. Equation 2. अब आपको इन्हें सॉल्व करना है. चलिए कुछ समय सॉल्व कर देता हूं. कोई एक इक्वेशन ले लें. इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 we get 9x की साइड चेंज कर देंगे तो प्लस 9y हो. 9y की साइड चेंज कर देंगे प्लस 9y हो जाएगा. यानी 11x इक्वल टू 9y माइनस 4 and x equal to 9y minus 4 upon 11. Suppose this is equation 3. Putting the value of x in equation 2. 6x means 6. 9y minus 4 upon 11 minus 5y equal to minus 3. तो 11 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को. यहाँ कर देंगे, ये 11 कट जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा. तो आपको मिलेगा 6 9y माइनस 4 माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33. 11 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से हट गया. 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें. 6 9 या 54, 54y माइनस 6 4 या 24 माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33. ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे. माइनस y 54y और माइनस 55y माइनस 24 इक्वल टू माइनस 33. नाउ माइनस y को उधर भेज दें. 33 को इधर ले आए. 33 माइनस 24 इक्वल टू y. दिस गिव्स y इक्वल टू 9. Now putting the value of y in equation 3. Equation 3 is x equal to 9y minus 4 upon 11. Now x equal to 9y means 9 into 9 minus 4 on 11. 9 9 या 81 minus 4 upon 11. 77 upon 11 which gives 7. So x equal to 7. Hence fraction equal to x upon y means 7 upon 9. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ यही था. 6th
5 year hence Jacob will be 3 times of his son. तो दोनों को प्रेजेंट टेंस लेट करते हैं. लेट Jacob's present age be X years and his son's present age be Y years. तो 5 साल बाद जैकब की एज 5 साल ज़्यादा हो जाएगी x + 5 और उसके सन की एज y + 5 हो जाएगी. और उसमें बोला है कि x + 5 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ y + 5. यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा x + 5 = 3y + 15 x - 3y = 15 - 5 x - 3y = 10. ये इक्वेशन 1 हो जाएगा. सेकेंड 5 इयर्स एगो की बात करता है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की. जैकब अपने सन का 7 टाइम्स होगा. तो 5 साल पहले जैकब की एज x - y रही होगी और सन की एज y - 5 रही होगी. According to second condition, x - 5 = 7 times of y - 5. x - 5 = 7y - 35. x - 7y = -35 + 5. x - 7y = -30. ये इक्वेशन 2 हो गया. इन दोनों को आप सॉल्व करें और जैकब और उसके सन की एज निकालें. चलिए टैक्सी फेयर वाला किराया क्वेश्चन देखते हैं. किसी शहर के टैक्सी फेयर दिए गए हैं, किस रेट से टैक्सी का किराया लिया जाता है. तो टैक्सी का 2 तरह के चार्जेज उसमें है, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर के रेट से चार्ज. यानी आप बैठ गए टैक्सी में, चाहे आधे किलोमीटर चले हों, वो आपको फिक्स चार्ज देना होगा और बाकी के चार्ज जितनी आप दूरी तय करेंगे उस तरह से होंगे. अपनी डेली लाइफ में इस तरह के किराए आते हैं, इस तरह के रेंट लिए जाते हैं. सपोज है इलेक्ट्रिक मीटर का, आप पूरे महीने बिजली बंद करके रखें, वो मीटर का चार्ज लगेगा आपका. फिर अगर आप यूज करते हैं तो मीटर का चार्ज अब प्लस पर यूनिट का रेट जो होगा वो लगता है. इसी तरह से टैक्सी फेयर इसमें दिया गया है. लेट दी फिक्स्ड चार्ज be ₹x and the charge per kilometer of journey be ₹y. हमने फिक्स चार्ज x रुपीज़ लेट कर लिया और पर किलोमीटर का रेट हमने y रुपीज़ लेट कर लिया. अब कोई 10 किलोमीटर टैक्सी से चलता है और उसको 105 रुपीज़ देने पड़ते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + 10y फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का y के रेट से ये 105 दिया है. इसी तरह से अगर 15 किलोमीटर चलता है तो उसको 155 रुपीज़ देने होते हैं. मीन्स फिक्स चार्ज x अब प्लस 15 किलोमीटर का y रुपीज़ के रेट से 155. ये दोनों इक्वेशन हो गए. इन दोनों को आपको सॉल्व करना है. आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बताना है और साथ में आपको 25 किलोमीटर का कुल कितना फेयर लगेगा ये भी बताना है. कोई एक इक्वेशन ले लें. फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वेरिएबल x की ही वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y की निकालेंगे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, फ्रैक्शनल हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा. हम x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं 105 - 10y. सपोज दिस इज इक्वेशन 3. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट 105
माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155, here 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इक्वल टू ₹50, y इक्वल टू 50/5, this gives y इक्वल टू 10। तो y आ गया, यानी चार्ज पर किलोमीटर आपका आ गया 10 रुपए पर किलोमीटर। अब चलिए y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट x इक्वल टू 105 माइनस 10y मीन्स 10 इंटू 10, x इक्वल टू 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5। सो the fixed charge be ₹5 and charge per kilometer be ₹10। अब आपको बताना है 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, फेयर कितना होगा। फेयर फॉर 25 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज x प्लस 25y से आप उसको सॉल्व कर लें। फिक्स चार्ज ₹5 अब प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, 255। ये दो आंसर हो गए आपके। कम से आप आंसर लिख दें। फिक्स चार्ज ₹5, चार्ज पर किलोमीटर ₹10 एंड फेयर फॉर 25 किलोमीटर ऑफ जर्नी ₹255। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व हो गई। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।